Good afternoon, students. This is Anurag Kumar Dubey, your chemistry teacher. In last lecture, we have discussed about nucleophilic addition reaction in aldehyde and ketones. Okay. So today, your next topic is reduction. Okay. Reduction of aldehyde and ketones. Okay. So this reaction is only for aldehyde and ketones. Okay, aldehyde and ketones. In reduction, the carbonyl compounds aldehyde and ketones reduced in hydrocarbon, reduced to hydrocarbon on treatment with hydrazine followed by heating NaOH or KOH in the presence of high boiling solvent like ethylene glycol. Clear? This is the carbonyl compound. This reaction take place in the presence of hydrazine NH2 bond, NH2, this is the first, and second in the presence of strong base like NaOH or KOH. Okay, in basic medium, and third solvent like ethylene glycol and temperature 453 Kelvin to 473 Kelvin. Clear? Now your product, देखिए करना क्या है, सिर्फ हमको यहाँ पे हाइड्रोजन को ला करके जोड़ देना है. ठीक, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH2. ओके, दिस इज हाइड्रोकार्बन and byproduct is N2. Now taking example CH3 C double bond O, here is CH3 methyl group and here is a EH. Okay, this is aldehyde and name is acetaldehyde and react with hydrazine NH2 bond NH2. Okay, in this reaction remove water molecule. Here is a oxygen and here is a water. Okay, hydrogen. So remove water molecule. Clear? And next CH3 and H bond open हो जाएगा, double bond and bond NH2. Clear? This is acetaldehyde hydrazone. Clear? After that required KOH basic medium or NaOH and temperature 453 Kelvin to 473 Kelvin and high boiling solvent like ethylene glycol. Clear? ethylene glycol. यही हमको क्या करना है, नाइट्रोजन बाहर कर दीजिए और हाइड्रोजन ला करके यहाँ पे कार्बन को दे दीजिए, बस ये करना है. तो क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे
CH है और ये तो हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा बॉन्ड CH3 एंड प्लस आपका निकल जाएगा N2, ये बनेगा क्या आपका एल्केन एंड नेम इज ethane. Clear? So this is the reduction of acetaldehyde in corresponding alkane like ethane. Clear? And next example, is C double bond O and CH3 H and plus NH2 means hydrazine, NH2 bond NH2, remove water molecule, here is also CH3, this is the acetone, clear? यहाँ से क्या रिमूव होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट नहीं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड N एंड बॉन्ड NH2, ओके, इसका नेम हो जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन, ओके, एंड नेक्स्ट KOH or NaOH used as a base and temperature same 453 Kelvin to 73 Kelvin in the presence of high boiling solvent ethylene glycol, ओके, यहाँ से N2 आपको क्या हो जाएगा बाहर N2 और ये दोनों ये चाबी किसको मिल जाएंगे कार्बन को, तो नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा CH3 बॉन्ड, here it is C, दोनों हाइड्रोजन को मिल गई CH2 और बॉन्ड CH3, ये हो गया आपका CH2 बॉन्ड CH3, this is the alkane and name is propane, okay, this reaction is called Wolff-Kishner reduction. This is the most important reaction, by name reaction is Wolff-Kishner reaction, okay, Wolff-Kishner reaction, या apostrophe s होगा, चेक कर लीजिएगा इसको, Wolff-Kishner reduction. तो क्या होता है Wolff-Kishner reaction, कहेंगे the carbon compound like aldehyde and ketone reduce in hydrocarbon on treatment with hydrazine, followed by heating in the presence of base like KOH and NaOH in the presence of high boiling solvent ethylene glycol to form alkane, okay. If we used propanone acetone, this is the acetone is a common name and IPC name is propanone. If we used propanone, I am taking propanone, so corresponding alkane is propane, okay. If you use butanone, butane, okay, this is the acetaldehyde ethane, corresponding alkane क्या होगा हमको obtained होगा, okay. So this reaction is called Wolff-Kishner reduction. I hope everything is clear, okay. Next reduction is Clemmensen reduction, very important reduction, Clemmensen reduction. This is most important for exam, Wolff-Kishner reduction and Clemmensen reduction, okay. In this reaction, carbonyl compounds like aldehyde and ketones reduced in hydrocarbon, okay, reduced in hydrocarbon
carbon on treatment with zinc amalgam and conc HCl. Okay, zinc amalgam Zn Hz and conc HCl. यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाएगा और यहाँ पर इसको H2 हमको देना है, CH2, मतलब इसमें क्या बनेगा आपका एल्केन CH2 और उसमें N2 बाहर होता था और यहाँ पर H2. दिस इज द Clemmensen reduction. Okay, now taking example, first aldehyde CH3 C double bond O bond H. This is acetaldehyde. Acetaldehyde plus hydrogen. Here is a zinc amalgam and conc HCl. क्लियर? हम यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे और दो हाइड्रोजन इसको दे देंगे, ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, ये कर दो किसमें CH3 बॉन्ड CH3. कैसे? दो हाइड्रोजन लेंगे कार्बन को और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ पे बचेगा 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, क्या रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल. ओके, दिस इज एल्केन एंड नेम इज इथेन. ओके, एंड सेकंड इज कीटोन. द पॉपुलर एग्जांपल इज एसीटोन. Here this is acetone plus 4H. This reaction take place in the presence of zinc amalgam and conc HCl. Clear? तो 2 हाइड्रोजन किसको देना है कार्बन को और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन रिमूव होगा क्या H2O और बने क्या आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. ठीक, और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा. ये हमारा बन गया प्रोपेन. दिस इज प्रोपेन और इसका आईपीसी में क्या होगा प्रोपेनोन. तो प्रोपेनोन reduced into propane in the presence of zinc amalgam and conc HCl. This reaction is called Clemmensen reaction. Okay, now your Wolff-Kishner reaction and Clemmensen reaction both are near about same, but this reaction take place in the presence of zinc amalgam and conc HCl, and Wolff-Kishner reaction take place in the presence of on treatment with zinc amalgam and in presence of NaOH or KOH and high solvent like ethylene glycol. Clear? और देर इज रिमूव, वहां पे क्या रिमूव था N2. क्लियर? और यहाँ पे H2O और दोनों का प्रोडक्ट सेम है कि दोनों में क्या बनेगा आपका एल्केन बनेगा. क्लियर? तो ये आपका था रिडक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी या वी आर गोइंग टू स्टडी अ नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज oxidation of aldehyde and ketones. This reaction only for aldehyde and ketone. Clear? Aldehyde easily oxidize, but ketones does not. Okay, aldehyde easily oxidize to carboxylic acid. जैसे aldehyde है आपका R बॉन्ड CHO, ये आपका इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इजीली चेंज हो जाता है RCOOH में. ओके, मींस aldehyde change into the oxidized into carboxylic acid in the presence of oxidizing reagent
oxidizing reagent like strong oxidizing reagent KMnO4, H2SO4 and K2Cr2O7 and mild reagent, साधारण reagent से ये हो जाता है mild reagent। नेक्स्ट टॉलेंस से भी हो जाता है टॉलेंस और फेरिक, नेक्स्ट है आपका फेरिक सॉल्यूशन से भी ये ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ये आपका है एल्डिहाइड। हमको पता है कि टॉलेंट टेस्ट एंड फेरिक सॉल्यूशन टेस्ट यूज्ड फॉर एल्डिहाइड टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड टेस्ट इन द गिवन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टॉलेंट टेस्ट और फेरिक सॉल्यूशन टेस्ट हम किसका करते हैं? इफ अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले और हमको चेक करना है उसमें कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम टॉलेंट टेस्ट या फिर फेरिक टेस्ट करते हैं। क्लियर है ना? टॉलेंट टेस्ट और फेरिक टेस्ट उसके लिए हम करते हैं। क्लियर? बट अगर कीटोन की बात करें, कीटोन हमारा मान लीजिए कीटोन है C+O R एंड R, इसी तरह कीटोन, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, सिंपल कंडीशन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट अगर हम इसके लिए कोई विग्रस कंडीशन लाएं, विग्रस कंडीशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे KMnO4 हो, H2SO4 हो, K2Cr2O7 हो, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर आप कहेंगे टॉलेंस से या फेरिक सॉल्यूशन इज द सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, तो टॉलेंट या फेरिक सॉल्यूशन से कभी भी हम कीटोनिक ग्रुप का, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड का तो CHO का टेस्ट हो जाता है इजीली, माइल्ड रिएजेंट से भी, टॉलेंट रिएजेंट से भी, आपका फेरिक सॉल्यूशन से भी हो जाता है एल्डिहाइड का टेस्ट, बट कीटोन का टेस्ट आपका नहीं हो पाता है टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेरिक सॉल्यूशन से नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि CHO में हाइड्रोजन होता है, लेकिन कीटोन में देखिए आपका यहाँ पे R है, CH3 है, CH3 is a group, not hydrogen, okay? तो यहाँ पर इजीली एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड माइल्ड रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज द फेरिक सॉल्यूशन, बट ketone does not. Why? Because there is a no hydrogen, okay? But in the vigorous condition, ketone oxidized into carboxylic acid में इसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विग्रस कंडीशन में, और ये उसके साथ में हम यूज करें क्या? KMnO4 और K2Cr2O7 means strong oxidizing reagent। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम कीटोन के लिए, मान लीजिए हमारा है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO एंड बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड R, ओके। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करें अगर इन विग्रस कंडीशन, इन विग्रस कंडीशन में, विशेष कंडीशन में ऑक्सीडाइज करें, तो यहां देखिए आपका जो कार्बन है, ठीक है, ये आपका कार्बन 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ठीक है, कार्बन 1 2 3, क्लियर? अगर मान लीजिए कि ये आपका यहां से ब्रेक करें 1 2, तो ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें? ये आपका चेंज होगा R, याद करें इसको, R बहुत इंपॉर्टेंट है, ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और यहाँ पे जो बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका
CH2 RCH2 और ये चेंज जाएगा कार्बोक्सिलिक में, मतलब COOH RCH2 COOH में। क्लियर? तो एक तो इस तरह समझ सकते हैं 1 2, और अगर आप हमें 2 3 में करते देखिए यहाँ से, तो जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा। यही से हम दिखा दे रहे हैं कि अगर आप 2 3 पे करेंगे तो इधर से आप आ जाएगा क्या, RCH2 COOH। अब ये वाला पहले बन जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपका, RCH2 चेंज हो जाएगा आपका RCOOH। क्लियर? तो इस तरह से ये 2 3 कार्बन की ब्रेकिंग से बनेगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका ये 1 2 कार्बन की ब्रेकिंग से बनेगा। तो ये आपका विग्रस कंडीशन है और आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे H2SO4 KMnO4 एंड K2Cr2O7, तब ये आपका कीटोन जो है वह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकता है, ठीक है। बट आपका एल्डिहाइड इजीली KMnO4 H2SO4 K2Cr2O7 माइल्ड रिएजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट या फिर आपका फेरिक सॉल्यूशन है, इन सब से आपका एल्डिहाइड जो होता है कार्बोक्सिलिक में इजीली चेंज हो जाता है या इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या कि एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लाइक KMnO4 H2SO4 K2Cr2O7 mild reagent tolerance reagent and ferric solution, but ketone does not. Why? Due to absence of hydrogen. But in the aqueous condition we can oxidize into carboxylic acid, ठीक है। There is a aqueous condition and used high oxidizing agent like KMnO4 K2Cr2O7 or H2SO4. Clear? Next example, this is CTH5 COCH3. Okay, this is the ketone, ethyl methyl ketone. Clear? इसका ऑक्सीडेशन विग्रस कंडीशन में हो जाएगा। अगर यहां से आप ब्रेक करिए, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा इसमें C2H5 COOH मींस प्रोपेनोइक एसिड, 1 कार्बन इसमें 2 कार्बन 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, बचेगा क्या है CH3, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा HCOOH, इट मींस फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ओके, फॉर्मिक एसिड में ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है आपका, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट is called tolerance reagent, ओके। जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन से लगा हुआ है आपका एल्डिहाइड, दिस इज बेंजल डिहाइड। अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे इससे टॉलरेंस रिएजेंट से, टॉलरेंस रिएजेंट से आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे कि आपका जो बेंजीन है वो चेंज हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड में, इसमें बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल से आपका फॉर्मिक एसिड है HCOOH, अगर इसका रिएक्शन हम Ag2O से कराएं, सिल्वर ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, Ag2 को ही हम टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि टॉलरेंस रिएजेंट का फार्मूला क्या है तो आप बताइए क्या उसे Ag2O होता है, ठीक है, Ag2O। अगर ये इसको किस में चेंज करेगा, ये इसको किस में चेंज करेगा, सॉरी
हम क्या ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO फॉर्मल्डिहाइड। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका HC=OH फॉर्मल्डिहाइड। और ये हमारा है टॉलरेंस रिएजेंट। हम इसको अगर मिक्स करेंगे किसमें एल्डिहाइड में तो ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें फॉर्मिक एसिड में HCOOH में। ठीक है ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें फॉर्मिक एसिड में और प्लस आपका निकलेगा 2Az का आपको दिखेगा क्या सिल्वर दर्पण की तरह। जब आप टेस्ट करेंगे कभी क्लास 12 वाले आप जल्दी जब कॉलेज में आएंगे स्कूल में तो अगर हम आपको फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड देंगे और उसमें अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट आप मिक्स करेंगे तो उसमें जो होगा आपका फॉर्मल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड को बनाएगा और साथ में जो टेस्ट ट्यूब की वॉल होगी वह आपको एकदम सिल्वर जैसी दिखाई देगी चांदी जैसी दिखाई देगी जो बताता है क्या कि जो आपने कंपाउंड लिया है फॉर्मल्डिहाइड उसमें CHO ग्रुप क्या है आपका प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम ले जैसे आपने लिया एसिटल्डिहाइड CH3COOH। अब इसका रिएक्शन हम टॉलरेंस रिएजेंट से कराएं Ag2O यही हमारा क्या है दिस इज द टॉलरेंस रिएजेंट क्लियर। अगर कराएं तो यहाँ पे क्या कराएंगे आप इसका ऑक्सीडेशन तो ये क्या होगा सॉरी बार ये आपका है एसिटल्डिहाइड ये एल्डिहाइड कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। बट जब भी हम इसमें टॉलरेंस रिएजेंट को मिक्स करेंगे तो ये एसिटल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा एथेनोइक एसिड में CH3COOH ओके एथेनोइक एसिड में और प्लस 2Az इसका क्या बनेगा सिल्वर मिरर। ओके और जिसमें सिल्वर मिरर बने समझ लीजिए उसमें क्या है एल्डिहाइड आपका प्रेजेंट है। तो टॉलरेंस टेस्ट आपको भूलना नहीं चाहिए। टॉलरेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है टॉलरेंस टेस्ट अब मैंने आपको 3 टेस्ट बताए यहाँ पर बेंजोडिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ठीक है अगर आप इनको टॉलरेंस रिएजेंट इसमें अगर आप मिक्स करते हैं तो आपका फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एंड बेंजोडिहाइड ऑक्साइड हो जाएगा रिस्पेक्टिवली बेंजोडिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड। ठीक है एसिटल्डिहाइड एथेनोइक एसिड एंड बेंजोडिहाइड बेंजोइक एसिड। क्लियर है और इसमें भी आपका बन जाएगा अगर लेंगे तो आगे उसमें 2Az निकल जाएगा। ठीक है अगर यहाँ पे आप यूज करेंगे क्या Ag2O। ठीक है तो 2Az आपका निकल जाएगा यहाँ पे आ जाएगा क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां पर भी क्या बन जाएगा आपका सिल्वर मिरर। क्लियर। तो ये आपका क्या है टॉलरेंस टेस्ट और पूरा जो इसका नेम है टॉलरेंस रिएजेंट का वो नेम है आपका सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। आप इसको याद रखिए कोई पूछे नेम क्या है तो आप बताइए सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। क्लियर। अब हम लोग फेयरिंग टेस्ट देखेंगे। ठीक है फेयरिंग टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर एल्डिहाइड टेस्ट। दोनों ही टेस्ट किसके लिए हैं एल्डिहाइड टेस्ट के लिए। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं देखते हैं फेयरिंग टेस्ट। ठीक नेक्स्ट फेयरिंग solution test okay Fehring solution used to identify aldehyde okay and Fehring solution test जो आपका है या कीटोन does not give Fehring test ये Fehring test नहीं देता या कह सकते हैं कि Fehring solution test only for aldehyde not for ketones के लिए नहीं है ये आपका एल्डिहाइड के टेस्ट है। ठीक है इसमें क्या होता है फेरिक सॉल्यूशन में आपका एक होता है सॉल्यूशन ए और प्लस आपका होता है सॉल्यूशन बी। ओके सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए क्या होता है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है एक्वस सॉल्यूशन
ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन बी जो होता है आपका, ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है COO Na और यहाँ पर हो जाएगा COOK, यहाँ पर हो जाएगा OH एंड EH, ओके। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपका है सॉल्यूशन ए और आपका है सॉल्यूशन बी, फेरिंग सॉल्यूशन ए एंड फेरिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड टेस्ट के लिए है, जैसे अगर हमने लिया RCHO और इसका रिएक्शन हमने करा दिया फेरिक सॉल्यूशन से, तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर जो होता है ब्लू होता है और ये देता है Cu++ है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने दिया Cu2++ है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है 2Cu। और ये जो आपका है फेरिक सॉल्यूशन जिसमें कॉपर आयन होता है, ये सबसे मेन होता है। हर कोई पूछता है कि फेरिक सॉल्यूशन क्या था, आप बता सकते हैं Cu++, ठीक है। और टॉलरेंस के लिए आप बता दीजिए Ag2O, ठीक है। और फेरिक के लिए आप बता दीजिए क्या, Cu++, यही मेन होता है, ठीक। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपका जो फेरिक सॉल्यूशन है इस एल्डिहाइड, ठीक है, चेंज कर देगा किसमें, RCOO- आयन, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में, और प्लस आपका जो ये Cu है ये बदल जाएगा आपका Cu2O में, ठीक है, प्लस ऑक्साइड, ठीक। और ये हो जाएगा आपका, ये होता है आपका रेड PPT, लाल हो जाता है, रेड प्रेसिपिटेट बनता है, जो बताता है कि गिवन कंपाउंड में CHO ग्रुप क्या है आपका प्रेजेंट है, और ये बनता है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, क्लियर। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, RCHO है और प्लस आपका 2Cu2+ एंड प्लस 5OH- बेसिक मीडियम में है, और ये चेंज हो जाता है आपका RCOOH में, मतलब कार्बोक्सिलेट उसमें आयन बनता है और इसमें आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। दो रिएक्शन सही है, जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। और प्लस आपका बनता क्या है यहाँ पे Cu2O, ठीक है, जो कैसा होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, PPT बनता है, इसका रेड PPT क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और प्लस आपका बचता है हाइड्रोजन कितना 6 5 6 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ 5 मतलब 5, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ क्या हो गया आपका 3H2O, ठीक है। ये आपका है एल्डिहाइड के लिए है, ये आपका कीटोन के लिए टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हम फेरिक सॉल्यूशन के द्वारा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के द्वारा या आपका टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा हम एल्डिहाइड का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल में भी है और उसके साथ साथ आपका थ्योरी में भी, ठीक है। तो थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस टेस्ट और आपका फेरिक सॉल्यूशन टेस्ट। एग्जाम में जब आता है तो पूछ लेता है एल्डिहाइड टेस्ट के लिए टॉलरेंस रिएजेंट का या टॉलरेंस का टेस्ट लिखिए, ठीक है, या फेरिक सॉल्यूशन का टेस्ट लिखिए, ठीक है, या तो फिर टॉलरेंस का टेस्ट पूछ लेता है, कभी-कभी फेरिक सॉल्यूशन का टेस्ट पूछ लेता है। ये दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आते किस में है, ये आते हैं आपके ऑक्सीडेशन, ये किस में आते हैं, ऑक्सीडेशन में। कल हम लोग पढ़ेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट, आप लोग देखते रहिए ध्यान से और अच्छे से इसको कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। जो भी ना आए बाय मैसेज, बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप आप हमसे हमेशा पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू 24/7 आवर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।